All right. So we were discussing up these few of the different quadrants or different things that Thomas Kilman has given. If you can see on the both this end, like your this particular below end, there is called cooperativeness. That you are cooperating with someone. That means you are trying to show or trying to go with others needs, like you are compromising. If I'll say the word cooperating, but in this means that you are leaving your needs and you are doing whatever other person is saying, because you are going towards their needs, like you are focusing or following others needs. And the other quadrant, we have assertiveness. Assertiveness is something that you are just focusing on your own needs. You try to facilitate others, but still for you your point of view is more important than any other point of view. So we'll start with one by one quadrant. On the first quadrant, if you can, like this one, competing. Like the word as it's being mentioned, like competing, like I don't want to listen to anybody whatever I'm saying. Like जिस तरह हम कहते हैं ना, my way or the highway, like whatever I'm saying, that's it, मैं किसी और को नहीं सुन रहा. This is something competing. I don't want to listen. I'm not agreeing. I'm not uh, giving any other person chance कि maybe there is some room for that, but नहीं, जो मैं कह रही बस वही करना है. This is competing. There is another stage that's called as avoiding. Now, what is avoiding? Avoiding can be like maybe it's a very trivial or it's a very petty issue. That's why I'm not focusing. I try to avoid the situation. I try to avoid the people. कि मुझे conflict में ही जाना. That's why I'm going to avoid. तो मैं कुछ ना कुछ ठीक है fine. मैं बात ही नहीं कर रही या मैं इस बारे में I'm not paying attention. That's why I'm avoiding that particular situation. Now again another quadrant is collaborating. Now the word collaboration, again we are trying to accommodate, we are trying to listen to other people, other person perspective. हम उनको मौका दे रहे हैं कि आपको जो भी कहना चाहिए ठीक है हम कह लें. We'll try to collaborate, हम करेंगे. Another thing, now what's the difference between collaborating and then accommodating? फिर इसमें क्या difference हुआ? हम accommodate कैसे करेंगे अगर हम collaborate करेंगे तो? Ma'am, might be it is possible in accommodating we are giving some certain kind of limited option in order to resolve the conflicts. All right, good, good. Basically collaboration में like for example हम we try to have a win-win situation. हम कहीं ना कहीं will try to कि अच्छा दोनों की हो जाए. Accommodating में हम हो सकते हैं अपने point of view को छोड़ दें. Like हम दूसरों की जो उसका point of view है हम उसको ज़्यादा मे बी हम उसको करें फोकस, पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम ठीक है यार तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बात मान लेते हैं. तो हम अपने वी आर अकोमोडेटिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज लाइक वन स्टाइल. In the center of all, that's like compromising. That's the least stage जब like आपको लगे कि नहीं मतलब ना हो पा रहा है, the other person, the other party is not willing to listen to me. So you trying to have that, उसमें definitely it would be a win-loss situation. The other person would be winning and you would be at a losing position, because आपको लगेगा आपने compromise कर दिया. जिस तरह बहुत दफा हमारे अंदर खुद भी feeling आती है, we realize that अच्छा यार मेरी बात नहीं मानी गई, हम someone is not paying heed to me. So maybe I'm compromising. I'm doing so many things. I'm like maybe if it's like office work, my team members are not listening to me. They are not paying any heed. So might be say I'm in a compromising situation. So depending on the style, depending on the thing, these are few of the things. Definitely there is overlapping and all. सब में overlapping होती है. क्योंकि कभी आप कोई ना कहीं किसी ना किसी quadrant में you are falling yourself. It depends on the situation. Again, it depends on the nature. It depends on the person. इसमें सबसे बड़ा बात है कि conflict जब भी people who are close to you, either आपकी वही वाली बात के people who are close in terms of like either it's your boss or it's your colleagues, so definitely आपको उनके साथ कोई personal relationship नहीं है. But when it comes to your family, friends, जब जहाँ पे आपका personal relationship आता है, फिर वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा differently you realize and you feel that. Over here, the case is totally different, and again, the style would be different from personal to professional conflict. So let's थोड़ा सा इसको मैं आगे okay.
So this is what we have just discussed. Competing में we are competing either bus whatever I have said, it's my way or highway. I'm not going to. So maybe you are compromising on the relationship as well because you think कि नहीं यार बस जो मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है. So sometimes you try to make or force people कि मेरी बात सुनो. या द सिचुएशन इज दैट मच अर्जेंट कि आपको नहीं कि आपको है कि नहीं दिस इज समथिंग हमें करना ही करना है अदरवाइज मे बी दे वुड बी लॉस इन द कंपनी और समथिंग. सो यू ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स. समटाइम्स ना होते हैं ना आप बीइंग अ लीडर बीइंग अ बॉस आपको कुछ डिसीजंस हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द टीम और द ऑर्गेनाइजेशन ताकि आपको पता है कि आगे आने में दिस वुड बी द राइट डिसीजन. सो यू नीड टू टेक अ स्टांस ओवर देयर सो योर टीम मेंबर्स और योर ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो यू. Then they are avoiding situations like they are very little matters or you don't want to focus on that. That's why something is like maybe the time is short. Okay, fine, ठीक है, let it be. जो हो रहा है करने दो वैसे हो जाए. Sometimes you're powerless. Can anybody explain what is powerless in this situation? How one can be powerless? Any idea? Maybe I don't have the authority. मेरे पास शायद वो पोजीशन अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि मेरे पास शायद वो टाइटल नहीं है. मे बी मेरे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को कह सकूं कि यार ये काम ऐसे नहीं. फॉर एग्जांपल being in a position I am for example just take an example मैं बिकॉज यूनिवर्सिटी में भी मैं एम सीनियर लेक्चरर. मैं सीनियर लेक्चरर हो सकते टॉप डिसीजन में टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन में इतना इन्फ्लुएंस ना कर सकूं. मुझे पता है ये चीज़ लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसे तो हर बंदा सोचता है हर बंदा अगर किसी चीज़ से रिलेटेड है तो दैट पर्सन हैव दिस फीलिंग. आपको पता है नजर आ रहा है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही बट स्टिल यू नो कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू या जो आपका जो चीज़ है वो मे बी टॉप मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू लिसन और दे डोंट पे ही. तो आप उनसे कहते हो ठीक है वट एवर you decide it's you are the boss you are right. So again there are some points or some stages आप कहते हैं ठीक है भाई I avoid the situation. So this is something I'm powerless because I don't have that much capacity or authority कि मैं किसी चीज़ को influence करूं और decisions को या किसी चीज़ को ठीक कर सकूं. So I try to avoid that particular thing definitely ताकि बाद में मेरे पे कोई conflict ना आए. तो मैं उस conflict से बचने के लिए I try to avoid that. Any question up till now? कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो? All right. No, ma'am, it's clear. Okay, perfect. Moving forward जो अभी हमने जैसे collaboration की बात की वो we collaborate, cooperate करते हैं हम collaborate करते हैं ताकि दोनों parties that would be a win-win situation. That's collaboration. Then accommodating again हमने accommodate कर लिया. हमने कहा ठीक है like let's आपने कभी कहा हो गया ठीक है जो तुम कह रहे हो सही है या कभी कभार आपने कहा सही है चलो. कभी कभार हम कहते हैं ना हम बहुत चीज़ों को हम कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सटेंड नहीं करना चाहते. वी ट्राई टू अकोमोडेट द सिचुएशन कि लेट इट बी ठीक है फाइन ऐसे ही कर लेते हैं. वी कोऑपरेट विद ईच अदर. अकोमोडेटिंग इज मोर लाइक कोऑपरेशन. एंड लास्टली वी कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज इज एट अ स्टेज लाइक हमें ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है कॉपरेट भी हमने कर लिया बट मे बी वो टाइम इस तरह की चीज़ है कि अच्छा ठीक है वो चीज़ अगर आप छोड़ देंगे अभी तो बेटर है. जरा बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे ऑफिस में द डेडलाइन इज़ वेरी शॉर्ट और समथिंग लाइक मैं अगर कुछ कह भी नहीं बट अगला मेरा जो माई टीम मेंबर्स आर सेइंग समथिंग एल्स. तो लाइक ठीक है फाइन जो तुम लोग कह रहे वैसे कर लेते हैं तो आई कॉम्प्रोमाइज ऑन माई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट मे बी द थिंग कुड बी डन. मे बी आपको आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए कर लेते हो. अच्छा सम टाइम द सिचुएशन कैन बी रिवर्स एज वेल. इस तरह अगेन इसमें भी आई ऐड कि हो सकता है कि आपने आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बाकी लोग नहीं सुनना चाह रहे या नहीं मानते. तो आपने कहा ठीक है आई गो विद द मेजोरिटी. हम कहते हैं मेजोरिटी के साथ जा रहा हूँ जो बाकी मेरे ऑफिस के कोलीग या मेंबर्स कह रहे हैं जो डिपार्टमेंट जैसा कहना चाह रहे हैं आई गो विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज ऑल्सो वन थिंग ताकि आप अपने आप को वी डोंट वांट टू बी लाइक लेफ्ट इट आउट और आप अपने आप को बिल्कुल अलोन नहीं करना चाहते. तो यू गो अलॉन्ग विद योर ऑर्गेनाइजेशन और योर डिपार्टमेंट एंड योर टीम मेंबर्स सो यू कैन वर्क ऑन एंड दिस इज लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग. सो दीज आर बेसिक स्टाइल्स जस्ट टू लाइक एक हम जस्ट क्योंकि अभी बिल्कुल हमने स्टार्ट किया है. सो एक डिफरेंट स्टाइल्स हमारे लाइफ में चाहे पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ वी आर हैविंग दिस. चाहे हम उसको उस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में उस टाइम इसको नाम नहीं देते कि आइदर वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग और वी आर कोलैबोरेटिंग और वी आर अकोमोडेटिंग. लेकिन वी इनसाइड अस वी नो व्हाट वी आर डूइंग. आइदर वी आर ट्राइंग टू अकोमोडेट दैट पर्टिकुलर पर्सन
या हम उसको अवॉइड कर रहे हैं या हम उसके साथ कोऑपरेट करें, व्हाटएवर द सिचुएशन इज। Okay, moving forward. So the point over here that needs to be have, like choosing a conflict style is situation, again the type of conflict and external environment provide the context. जिस तरह मैंने पहले कहा हमारा कंटेक्स्ट डिफर करता है। अगर इट्स अ प्रोफेशनल कंटेक्स्ट डेफिनेटली जो मेरा कन्फ्लिक्ट स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। अगर इट्स अ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, अगर मेरी फैमिली फ्रेंड्स मे बी सिबलिंग के साथ कोई आई एम लाइक हैविंग अ नेगेशन और आई एम लाइक कॉन्ट्रडिक्टिंग फ्रॉम देम, सो डेफिनेटली उस टाइम पे मैं शायद अवॉइड भी कर सकती हूँ, मैं उनको मे बी मैं उनसे कम्पीट भी कर सकती हूँ। बट एट टाइम्स इन ऑर्गेनाइजेशंस यू आर नॉट देयर टू अवॉइड पीपल, यू आर देयर टू कोलैबोरेट, यू आर देयर टू अकोमोडेट। जब सब तक मिलके काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम कर पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू सी द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन सा स्टाइल यू कैन यूज। ओके, this is basically एक थोड़ा सा जिस तरह, because the word conflict is sometimes it always has a negative connotation. जब हमेशा हम conflict सुनते हैं कभी negative ही होगा, कभी conflict positive connotation में use बहुत कम किया जाता है। So we'll see positive हम उसको कैसे use कर सकते हैं। So these are few of the things we'll discuss one by one in detail. जो conflict और negotiation में we use these terms: litigation, arbitration, grievances, appeals, peer review, mediator होता है, facilitator होता है, conciliation होती है, negotiations होती है, ombuds person एक हायर किया जाता है या ट्रेनिंग करवाई जाती है, ये ओपन डोर पॉलिसी होती है। समटाइम जब वी टॉक अबाउट कि अगर कोई प्राइवेट में कोई चीज़ हो रही है, मे बी कोई टॉलरेशन, र्यूमर्स, गॉसिप, नॉन कॉपरेशन, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड दीज आर फ्यू ऑफ द मेथड्स, लिटिगेशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, मेडिएटर के थ्रू, फैसिलिटेटर के थ्रू, व्हाट वी आर गोइंग विद। सो वी नीड टू सी दैट हाउ कितना बड़ा नौयत का है। like you all have like business law में आप लोगों ने पढ़ा होगा, business law में वैसे by the way I don't think so you remember because it's back long, but it was more about the corporations or it was more about the organization in terms of like people. Do you guys remember क्या चीज थी business law में, क्या पढ़ा था? corporations के laws ज़्यादा थे या उसमें that was related to human rights as well या labor laws? किसी को याद नहीं है? मैम याद डेफिनेटली होगा। Okay, so what exactly was taught? किस चीज को कवर अप किया गया? लेबर लॉस पढ़े थे। लेबर लॉस पढ़े थे शायद मैम याद आ रहा है। मैम but I think corporate से ज़्यादा focus was on ये breaching of contract which we have normally on property and businesses and वगैरह वगैरह। Yes मैम, contracts पे ज़्यादा था, ठीक है। ओके, बट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स हम ज़्यादा ह्यूमन राइट्स, दैट्स लाइक लेबर लॉस पे ज़्यादा हम बात फोकस करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक अदर जब एचआर का जो फोकस होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक कन्फ्लिक्ट अगर आ जाए तो हाउ वी आर गोइंग टू गो विद अदर, कौन सी चीज़ हम कौन सा मेथड वी आर गोइंग टू चूज। Okay, so these are few of the things again just to have a build up introduction of the course. The content and the goal would be again कि आपकी जो भी चीज़ है आप दोनों के दरमियान में ऑर्गेनाइजेशन उसमें सफ़र ना करे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं, वो सफ़र नहीं करने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जो भी चीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग इन पर्टिकुलर, आइदर इट्स योर ओन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, आइदर यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यू आर रनिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, आपके किसी एम्प्लॉइज में या आपके मे बी आपकी टीम में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, यू वांट इट टू बी लाइक रिजॉल्व, यू डोंट वांट कि उसमें किसी का नुकसान हो इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी और योर मे बी फिक्स एसेट जो भी आपके हैं, also your individuals, because these are the people, if your team members are getting along with each other, definitely that organization is going to rise and that organization will be more successful. Then rational issues, definitely you need to see कि अभी जिस बात का conflict हो रहा है वो बाकी कोई rational issue है या नहीं है, या आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी में भी एक ego की वजह से, मे बी sometimes आपके personal relation या expectation की वजह से, for example being a boss, जिस तरह बॉस की मैं यहाँ पे थोड़े ज़्यादा मैनेजर या बॉस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज एक कहते हैं ना एक
स्टेटेड और आप बगैर करे भी आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं एम्प्लॉय से कि वो एम्प्लॉय ऐसा काम करेगा, लाइक अनस्टेटेड मेरी एक्सपेक्टेशन होगी माय एम्प्लॉय शुड कम ऑन टाइम ऑन डेली बेसिस. If he's coming late, that means he's not a good employee or he's not being sincere to the organization. He's very lazy. So these are few of the things that's been maybe deduced from his behavior, but that does not mean कि कोई issue है इस चीज़ का. issue होगा, so you need to talk it out with your particular employee. अगर आप बस एक issue बनाने के लिए बनाना चाहो, so there could be plenty of other things that can be done. So you need to see either that issue is particular rational issue, वाकई में कोई उस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है, कोई conflict है, then you need to talk about that. Then you need to find it's a identity issue. Identity is something like मेरा उसके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, मे बी दैट पर्सन वाज नॉट मे बी रिस्पेक्टफुल टू मी, उसने मुझसे बहुत जिस तरह अगर दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात करते हैं हम, इसमें जो वर्क प्लेस हरासमेंट होती है उसमें यू नीड टू आइडेंटिफाई उस बंदे ने आपको या पर्टिकुलर बंदा या बंदी व्हाटसोएवर लाइक जो भी है उसने आपसे किस बात लहजे में बात की है, क्या बात की, फिजिकल डिस्टेंस कितना था, क्या बात करना चाह रहा था, क्या बात आपने इंटरप्रेट की. सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट. सो दिस इज लाइक यू नीड टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी, लाइक किसने किस तरीके से बात की और उसका उस चीज़ में मकसद क्या था. अगेन जो एक हम कहते हैं ना लास्टली वी नीड टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज, उस चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते थे, चाहे निकले हों या ना निकले हों. जब भी क्योंकि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, सो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है एंड में हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर आपकी जो भी आपने एटीट्यूड जो भी हुआ जैसा भी हुआ, व्हाट वाज द लास्ट थिंग एक्चुअली उसका क्या निकल सकता था, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट. आइदर इट वाज लाइक समथिंग दैट वाज डन जानबूझ के ऐसा कुछ किया गया, या इट वाज डन लाइक जैसे स्टूडेंट में भी कभी हो जाता है केसेस आ जाती हैं, या फैकल्टी में भी, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी. सो हाउ यू आर गोइंग टू गो विद दैट, यू नीड टू सी द आइडेंटिटी कि वाकई में वो वाकई डिसरेस्पेक्टफुल था, वो करना चाह रहा था, उसकी अपनी जो मैं कहते हैं ना उस जिससे होता है आपने कोई काम जानबूझ के ऐसे किया ताकि ये इसका एंड रिजल्ट ये निकले. सो यू नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग. Then the process. Anybody would like to tell कोई क्या समझ आता है? What are the process issues? Process is basically कि हमने जिस प्रोसेस से अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, आइदर इट्स वाज अ फेयर प्रैक्टिस और नॉट. हम शुरू से लाइक एचआर में भी अगर मैं बात करूँ, हम हर चीज़ में फेयर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं. एवरीथिंग शुड बी डन बाय जो भी हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी में ओशा का हमारा एक जो भी पैक्ट है. देन हमारे लेबर लॉज हैं, हमारे लेबर रिलेशंस में जब व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर यूनियन तो हमारे वहाँ पे डिफरेंट हमने एचआर में भी यहाँ स्टडीड कि उसमें डिफरेंट हमारे क्लॉजेज हैं, डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स हैं. So everything what we are doing in HR needs to be done or needs to be in fair and square. It should be not having any unethical practice, should not be done. So this is how while resolving any conflict as well कि मुझे मैंने as being जिसमें मैं कहूँ मैं अभी यहाँ पे arbitrator हूँ, मुझे पार्टी ने हायर किया, but I need to listen both point of view. Like जैसे कहते हैं ना मैं दोनों की बात सुनूंगा. I am facilitating over there. I am listening कि किसने क्या किया, सही किया, नहीं किया, क्या इसके लीगली इश्यू क्या हो सकते हैं, इसके अगर वर्क प्लेस रिलेटेड है तो उसको क्या चीज़ों में हमें इसको देखना है. सो वी नीड टू हैव अ ट्रांसपेरेंसी. सो द प्रोसेस शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट. सो इस सब चीज़ों में दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग दैट नीड टू बी नोटेड. नंबर 1, आपका एंड गोल है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना. आइदर इट्स अ पर्सनालिटी इशू, इट्स आइडेंटिटी इशू, इट्स बेसिकली योर मे बी एनी अदर इशू रिलेटेड टू people or the process that needs to be solved. इन सब में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक होती हैं. बट बीइंग एन HR मैनेजर और HR हम डिपार्टमेंट से अगर बिलोंग करते हैं तो हमारा लास्टली यही कंसर्न होता है कि हमें वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस पर्टिकुलर थिंग. वी डोंट नीड टू प्रोलॉन्ग इट, वी नीड टू गो अलॉन्ग विद दैट ताकि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए. ताकि ये चीज़ प्रोलॉन्ग हो कि डेफिनेटली दैट वुड बी a hurdle for both the organization as well as for the company. So we need to sort it out. Okay, any question up till now? जो चीज़ अगर कोई डिस्कस करना चाह रहे regarding this particular जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया regarding styles and these issues.
ओके, अभी तक हमने सिर्फ कन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया था, अभी हम बात करेंगे नेगोशिएशन की. अगेन वी ऑल नो द वर्ड, दिस टर्म नेगोशिएशन. When two or more people are involved, then negotiation can be done. Negotiation can't be done individually. मैं अपने आप से अकेले negotiate नहीं कर सकता. करते हैं हम वैसे, लेकिन that's not called as negotiation. So negotiation में definitely that should be having a purpose होना चाहिए, उस चीज़ का कोई goal होना चाहिए, perspective होना चाहिए. जिस तरह हमने पहले बात की, उसकी क्या वजह है, क्या हम क्यों negotiate कर रहे हैं. Either मुझे वो चीज़ चाहिए, maybe it's a physical thing, maybe it's like something related to my work or my that particular discussion. So what is the end goal for that? Why I'm negotiating? So I'm like, for example, like हो सकता है लड़कियों का या वैसे फीमेल्स का फेवरेट चीज होती है, like negotiate करते हैं, like हम bargaining करते हैं. तो negotiation is also bargaining, like, but it's used in a different connotation. We'll discuss what's the difference between negotiation and bargaining as well. So we need to see either what we are going for, either we are going towards the interest कि मेरी चीज़ की कोई मेरे मुताबिक कोई चीज़ है तो मैं उसके लिए negotiate करना चाहिए, मुझे तो ऐसे है, या it could be versus possession as well. How can anybody have any idea how negotiation is towards the possession? Ma'am, I think negotiation is different between what kind of business or what kind of organization is performing, how organization performing their function in the market. Because sometimes for the negotiation purpose, we also offer the arbitrator, the third person, to solve the problem. So it depends how large organization expand your business and what kind of department they have internally in the market. All right, good, good. Basically, possessions comes in like what is my possession? Like either who am I? Am I the boss? Am I the maybe group leader? I'm the team leader. Maybe I am senior. The other person is junior. So I need to see what possession I am having right now while negotiating. चाहे मैं colleague हूँ, मैं अपने maybe अपने किसी जो colleague से अपने peer से negotiate कर रहा हूँ. So my terms, my maybe words would be totally different. Yes, Arsalan. Yes, ma'am. So, ma'am, I wanted to add, like in negotiation, can we say that's the same thing as we had that being powerless or being at a designation where your decisions matter really? Can that be a part of negotiation as well? Can be exactly, that can also be the part of negotiation. Yes. Okay. Another very important aspect of negotiation is BATNA. We'll discuss detail, but abhi just to have the idea, BATNA is basically best alternative to a negotiated agreement. What could you do if it's no agreement is made? Like हम अपने हमारे जिसने कहते हैं there is a possibility zone. You need to see the possibility. क्या इस possibility में रहते हो, जिस तरह कहते हैं ना, this is something. Let's talk about a broker and a agent. Sorry, broker and a जो हमारा seller होता है और broker होता है. So जो खरीदने वाला होता है, for example, if I am being the tenant, I am like जो मैं tenant अगर जाता है broker के पास, I need something. तो वो एक मुझसे कोई ना कोई रेट सेट करेगा, मुझे बताएगा कि दिस इज समथिंग. और इफ यू से लाइक आप मार्केटिंग में आपने किसी से कोई बात की, अच्छा ठीक है ये इतने की चीज़ है, सो यू हैव सम पॉसिबिलिटी कि अच्छा इतने की हो गई कि तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा, आइदर आई एम गोइंग टू वॉक अवे. सो यू नीड टू कम ऑन सर्टन ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ लाइक निगोशिएशन में आप किसी एक पॉइंट पे जगह आना चाहते हो ताकि आप दोनों कहते हैं ना विन विन हो जाए. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हायर maybe have a property, मैं किसी चीज़ को खरीदना चाहती हूँ, या मैं maybe रेंट पे भी लेना चाहती हूँ, या मैं कोई और चीज़ वैसे I'm purchasing something, so I'm going to negotiate with that particular person that say yeah this is my limit, मैं इतना दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगी. So again that person will be like अच्छा ठीक है, अगर उसको लगता है कि यार ठीक है इतना नहीं तो इतना होगा, so this is something that's हम इसको अपनी जर्नल लाइफ में तो इसको हम कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती, but organizational perspective में we called it as BATNA, best alternative to a negotiated agreement. इतना हम उसको अपने लेकर लें अपने जो हमारे possible agreement को, ताकि हम दोनों की जो situation that could be a win-win situation, ना कि उसको लॉस हो ना मुझे लॉस हो, and we both can be agreeing to something. For example,
when two organizations are like doing business with each other, जब business होता है, so we try to accommodate, जिसमें हमारे जो board of directors हैं, board of जो होते हैं companies के, they decide on things का, अच्छा मैं इतना करूँगा, what जिस तरह for example मुझे अपने employees को health insurance देनी है, मेरे पास different companies आ गई, आदम जी आ गए, मेरे पास life जुबली life आ गई, मेरे पास maybe EFU आ गई, and I would like, okay, what is your best offer to me? I have these particular employees, मेरे पास for example 5,000 employees that are working in my organization, so I have to make a deal. ठीक है, मुझे बताओ क्या क्या ऑफर्स हैं आपकी, जो बेस्ट ऑफर होगी, जो मेरे लिए बेस्ट होगी और उसके लिए बेस्ट होगी, जिसके लिए मेरा एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन, सो आई नीड टू कम आउट विद दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट्स बेसिकली पटना. ओके, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की पोजीशन, अगेन एट व्हाट पोजीशन यू आर competing for, like हम किससे बात करें, मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या डेजिग्नेशन है, सामने वाला कौन है, so you need to have this particular thing in mind. Interest, again मेरा इस चीज में कितना इंटरेस्ट है, like talking about when I was getting the health insurance for my employees, definitely I want to get the health insurance. अब जो भी मेरे पास कंपनीज के ऑफर्स हैं, I need to see what is the best interest for my particular company, ताकि मैं किसी एक से उनसे ले सकूं, either it's Jubilee Life Insurance or either it's EFU, either it's आदम जी, जो भी इंश्योरेंस दे रही हैं, मुझे क्या फायदा होगा, आई नीड टू सी माय इंटरेस्ट इन दैट. लास्टली वी नीड टू सी, फिर हम दोनों बैठ के हम निगोशिएट करेंगे, अच्छा आप लोग ये दे रहे हैं, अच्छा हमें तो ये भी चाहिए, मे भी हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे जिस तरह होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन में चाहिए, मे भी आपसे हमें मैटरनिटी के हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, अगर कोई और हो जाए, किसी ने सर्जरी करानी तो व्हाट वुड बी डन, सो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन करेगी, कितना एम्प्लॉय करेगा, सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू नेगोशिएट, वी नीड टू टॉक आउट while having this thing. So we need to see how much we can negotiate with the company, क्या उसकी क्या कितनी वैल्यू है हमारे लिए, so depending on the again interest, कितना हमारा इंटरेस्ट है उस चीज़ में, अगर मेरा इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वहाँ निगोशिएट करूँगी, जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा तो मुझे कोई भी कितनी भी अच्छी ऑफर क्यों ना दे दे, आई एम नॉट गोइंग टू नेगोशिएट ऑन दैट. Okay, increasing power or bargaining strength. So again, through this course, this is just I'm like telling you, through this course we are going to improve our Patna. कि हम अपनी जो negotiation power को, अपने negotiation जो skill है, उसको हम किस तरह better करेंगे ताकि हम उस पटना वाली चीज़ पे एक ऐसी जगह आ जाएं, so that both parties can have a win-win situation and we can make or realize the other party कि whatever I'm saying, that's also a good deal, or that's also a maybe it's good for you as well. So we'll try to improve that, but nothing. Then we'll be talking about how to identify the interest, how to counter that, how to see the things. So we'll discuss in detail one by one. Okay, these are the things from जो चीज़ें एक बाइफेशन एंड शपीरो ने दी हुई है, that's really good. कि हमें अगर we are in a conflict कहीं पे भी, either it's a workplace conflict or we are negotiating, so these are few of the things we need to keep in mind. किसी के सामने भी, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ये चीज़ें हमेशा माइंड में रखो. वन इज एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन इज लाइक मेरे एक्शंस इससे कितने अफेक्ट हो सकते हैं, लाइक मैं अगर किसी कुछ कह रहा हूँ या एक्नॉलेज कर रहा हूँ, तो इसको क्या मेरे एक्शंस या मेरे थॉट्स से इससे क्या हो सकता है, आइदर उससे अगले वाले को क्या मे बी उसके दिमाग में, या हाउ दैट पर्सन इज हैविंग अ फीलिंग टुवर्ड्स दैट. सो आई नीड टू हैव दैट. ऑटोनॉमी, अगेन डेफिनेटली अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो आई डू हैव द ऑटोनॉमी, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, बट उस ऑटोनॉमी का आई डोंट हैव टू मिसयूज दैट. मैंने अपनी जो कहते हैं अपनी रिस्पेक्ट, अपने जो सामने वाले की जो रिस्पेक्ट है या सामने वाले का जो डिसीजन है उसको भी देखते हुए आई नीड टू टेक अ डिसीजन इन द कन्फ्लिक्ट एज वेल, ताकि वो चीज़ भी रहे. आई नीड टू सी द एफिलिएशन कि किसके साथ मेरा कन्फ्लिक्ट है, मेरा उसके साथ पर्टिकुलर रिलेशनशिप क्या, आई नीड टू कीप दिस माइंड एज वेल. स्टेटस, अगेन junior versus senior, seniority, inferiority, not inferiority, like junior. So you need to keep in mind कि आपके सामने वाला कौन है, आपका बॉस है, आपका colleague है, maybe person from any other department but maybe having a higher designation. So you need to keep in mind कि क्या status अगले का while having a conflict with that particular person. Lastly, your role, कि आपका उसके साथ क्या रोल है. अगर जिस तरह मैंने कहा आपका पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनका रोल आपकी लाइफ में डिफरेंट है, उनसे कॉन्फ्लिक्ट आपका डिफरेंट होगा, उनके नेगोशिएशन आपके बिल्कुल डिफरेंट होगी. इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर मेरा कोई बॉस या मे बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट
उससे उसका रोल डिफरेंट है, सो डेफिनेटली आई कुड नॉट हैव दैट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट। मैं चाहते हुए भी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उस तरह कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग अ डिफरेंट रोल, और उस रोल का डेफिनेटली उस पर मेरा उसका इम्पैक्ट मेरे पे डिफरेंट होगा। अगर कन्फ्लिक्ट में हो भी जाते हैं, so at the end of the day, in the longer run, it will be my loss because he is a or she is the head of department. So मुझे कहीं ना कहीं वो भी चीज़ देखनी है कि जब मैं conflict में हूँ, so how I'm going to negotiate, how I'm going to go along. Any question in this? इन सब चीज़ों में अभी तक कोई चीज़ which is not clear. No, ma'am. All right. So this was just an introductory slide about what is conflict management and negotiation. Just to have a gist or just to have the idea. We'll proceed towards our first chapter. That's again the book I have referred, that was by Barbara. It's a really good book because उसमें एक अच्छी बात ये है, chapters hardly 4, 5, 6 pages, ये ज़्यादा बड़ा chapter नहीं है, 7, 8 pages का ज़्यादा से ज़्यादा. But the things he has mentioned, that's like more than enough to understand what is basically conflict management or what's the topic is. So we'll proceed towards our first chapter.